Yes, good evening. So, as discussed earlier about incident and accidents, here we are going to start a, a little bit like more informative information about the accidents and incidents. Proaction versus reactions. In a well that has an accidents waiting to happen, someone ought to do something. That someone is you. तो मतलब यहाँ पर देखिए look for hazard in every direction. So wherever you are working, you should look for a hazard in every directions. So proactions, as I said, as I told you earlier, then as safety officers to should always be a proactive. We should not allow our any hazardous thing to lead or initiate uh, to initiate with an with accidents or incidents. So it's better to avoid. We should avoid the further incidents or accidents. To avoid any kind of incidents, accidents or near misses, we should have preventive controlling and preventions methods systems. So here, to avoid accidents, let's hear it. See यहाँ पे देखिए accident prevention. ये image में देखिए आप. How to prevent accidents and incidents at the site. What is an accident? Evacuate crash कीजिए तो just a number and see, an accident is an unexpected and undesirable event. Unexpected, you cannot expect, and you cannot, you are wantedly you won't do any accidents. Especially one resulting in damage or harm, car accidents or IC roads. IC roads. An unforeseen incidents, a series of happy accidents led to a his promotions. See now, see an instance of involuntary urination or defecation in one clothing. Lack of intention, chance ran into an old friend by accident. See, just इसके division दे रहा है. Logic A, circumstances or attribute that is not essential to the nature of something. But the first A1 as a safety officer, A and B is more suitable. An unexpected and undesirable event. Unplanned event बोलते हैं accidents को. It is an unplanned event. Especially one resulting in damage or harm. वो जो डैमेज या हार्म बॉडी हार्म को रिजल्ट करता है उसको कहते हैं एक्सीडेंट्स. इंसिडेंट्स भी सेम ही है बट प्रॉपर्टी लॉस होता है. एक्सीडेंट्स में फिजिकल इंजुरी होती है बस. hazards, existing or potential condition that alone or interacting with other factors can cause harm. That anything which has a potential to cause harm. A spill on the floor, broken equipment. A spill on the floor is hazardous. Broken equipment जो यूज करते हैं वो भी एक काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ hazards. See, risk क्या है? A measure of the probability and severity of a hazard to harm human health or property or the environment. जो चेन है प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी जो रहती जो हजार्ड्स में उसको कहते हैं रिस्क. मतलब द सेकेंड द कंक्लूजन ऑफ हजार्ड इज रिस्क. हजार्ड का जो कंक्लूजन है, हजार्ड में जो एरिया है उसमें रिस्क क्या है, उसका रिस्क का एंड क्या है, एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स. सो द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज कितनी प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी ऑफ हजार्ड्स टू हार्म, मतलब जो नुकसान इंसान को पहुंचाता है प्रॉपर्टी और या एनवायरमेंट सराउंडिंग्स को, उसको कहते हैं रिस्क. अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली हार्म इज टू अकर एंड an indication of how serious the harm might be. So एक just एक example दिया है कि how likely harm is occur, मतलब नुकसान कितना हो सकता है. indication of how serious the harm might be. तो जो होता है वो कितना सीरियस है. तो सिवियरिटी प्रोबेबिलिटी ऑल टुगेदर इज नोन एज रिस्क. सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर और हार्म. नथिंग इज फ्री ऑफ डेंजर. ऑब्वियसली नथिंग इज, सब में डेंजर थोड़ा रहता ही रहता, हजार रिस्क रहता ही. बट वी कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक समथिंग सेवर टू एलिमिनेट द हजार्ड रिस्क. उसको अपन सेव कर सकते. दैट इज सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड और डेंजर्स और फ्रीडम फ्रॉम डेंजर और हार्म. Safety is better defined as a judgment of a acceptability of a risk. So risk को जज करके उसको एक्सेप्ट करके फर्दर मूव होना, you can save it as safety. तो उसको इवेल्युएट करना, हजार्ड्स को, रिस्क को रिड्यूस करके उसको फर्दरली मूव होके, मतलब उसको जज करना, एक्सेप्ट करना और इवेल्युएट करना, उसको कहते हैं सेफ्टी. सी टाइप
you know 1974 it's fatality generally वन ही ज्यादा होता है मेजर, according to the वो इसका वो ईयर ऑफ सेंसस जो रहता है ना ईयर का, अकॉर्डिंग टू द सेंसस एंड ऑल वो है, बट जनरली फेटेलिटी कम ही होती है, बट मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, नियर मिसेस हर जगह पे ज्यादा होते हैं प्रॉपर्टी। सी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, अब यहाँ पे जनरल एक छोटे मोटे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। फॉल टू सेम लेवल, लो सेम लेवल और लोअर लेवल, कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कोल्ड और रेडिएशंस, ये caught in on between or bodily reaction from voluntary motion or involuntary motion, ये just एक, but types of accidents क्या है, मतलब causes of accidents क्या है मैं आपको पहले ही बताया था, environmental causes है, मतलब human error है, mechanical error है और environmental error है, और cost, there are two cost, like direct cost और indirect cost, ये है। अब different types of accidents है, फॉलिंग fall from the height है, एक्सकवेशन में है, buried, burns, ये भी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स ही होते हैं, बट जिसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के है, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट कंटिन्यूस। ट्रक देखिए, ट्रक्स के बारे में रबड़ और अरेडेड बाय फ्रिक्शन और पिचन वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस की वजह से जो बॉडी को, अपर लिम्स को, लोअर लिम्स को, जॉइंट्स को वो होता ही है। स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग, किसके बीच में शार्प एंड में फंस जाना है, किसका मार लगना, या मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का मार लगना। फैटल एक्सीडेंट्स मालूम है, फैटल माने मरने को कहते हैं, वो भी व्हीकल से भी है, ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट्स, कांटेक्ट विद फॉल्स, ऊपर से गिरना, असॉल्ट्स और वायलेंट साइड्स पे लड़ना करना उसमें। फैटल एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू यूएस स्टैंडर्ड है, व्हीकल एक्सीडेंट्स, कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, सेम वही रिपीटेड है। सी एक्सीडेंट कॉजिंग फैक्टर, ये है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेसिक कॉस्ट क्या है, मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल, इक्विपमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट मतलब if your management, your how you are going to manage, how you are going to manage your site and location, your working procedures and all. Environmental, like in what environment you are working, मतलब कौन से environment में काम कर रहे, रिस्क environment में, या नियर टू सी काम कर रहे, इन द मिडिल ऑफ सी काम कर रहे, ऑफ शोर, ऑन शोर, या आप हाइट पे काम कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इक्विपमेंट, कौन सा टाइप के इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं आप, वेरी ओल्ड इक्विपमेंट यानी तो मॉडिफाइड इक्विपमेंट, और कोई डैमेज इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो टाइप के, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है वो इक्विपमेंट यूज करें। ह्यूमन बिहेवियर, एज आई सेड यू मेनी टाइम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सीडेंट्स, कि आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। सी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, स्लिप, ट्रिप, फॉल, कॉट इन, रन ओवर, केमिकल एक्सपोजर, ये डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो कि बंदे को। इनडायरेक्ट अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, इनडायरेक्ट माने अनसेफ एक्ट, जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अनसेफ कंडीशंस में, काम मतलब अनसेफली काम कर रहे हैं, विदाउट पीपी काम कर रहे हो। अनसेफ कंडीशन, एरिया वैसी है, केबल्स पूरे का है, वेट एरिया में केबल लाइव केबल से काम कर रहे हो, अनसेफ कंडीशन, साइट का कंडीशन वो अनसेफ। यहाँ पर स्लिप, ट्रिप, फॉल, स्लिप गिरना, ट्रिप, फॉल ऊपर से, कॉट इन कुछ चीज को फंस जाना करना, रैन ओवर कोई ऊपर से आपके जाना, या आप किसी के ऊपर से मतलब आप रोटेट रोल हो जाना। केमिकल एक्सपोजर, when you are going to, like when you are exposing to the chemical, dangerous केमिकल्स में छोटे मोटे, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे थिनर जो कि यूज होता है, ओवर यूसेज ऑफ थिनर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्किन के रैशेस होते हैं, स्किन एलर्जीज होती है। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पे, पॉलिसी इन प्रोसीजर, एनवायरमेंटल कंडीशन, इक्विपमेंट, प्लांट एंड these are the सिस्टम, लाइक बेसिक कॉस्ट क्या है उसके, बेसिक कॉस्ट के रिलेटेड में आपको पॉलिसीज प्रोसीजर्स अगर सही रहे, एनवायरमेंटल कंडीशन, इक्विपमेंट, प्लांट, डिजाइन, ह्यूमन बिहेवियर, तो उससे अनसेफ एक्ट एंड कंसेप्ट कंडीशन, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो इसे डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ ट्रिप में बता रहा है। और फाइनली दिस एक्सीडेंट, पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज एंड पोटेंशियल लाइक हजार्ड ओनली एक्चुअल। तो ये सारे एक जनरल आपको एक द वे ऑफ प्रेजेंट, इसके हिसाब में आपको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर आपको ऐसा बताया गया है। सी बेसिक कॉजेज, मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मैनेजमेंट में अगर आपकी सिस्टम्स प्रोसीजर सही रहे तो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स नहीं होते, फॉलो कर। एनवायरमेंट एंड नेचुरल एंड मैनमेड, जैसा कि बताया मैं आपको, फ्लड्स हो, हेवी रेन हो, सैंडस्टॉर्म्स हो,
अर्थक्वेक हो, एनवायरमेंट। इक्विपमेंट डिजाइन एंड इक्विपमेंट अगर सही डिजाइन नहीं किया, राइट टूल फॉर राइट जॉब अगर नहीं रहा तो ह्यूमन बिहेवियर। फाइनली ह्यूमन बिहेवियर, इट्स द बिहेवियर ऑफ एट ऑपरेटर, इट्स द बिहेवियर ऑफ द टीम लीडर सुपरवाइजर, हाउ ही इज बिहेविंग एट द साइट ड्यूरिंग एनी एक्टिविटीज। देन मैनेजमेंट, यहाँ पर दिया देखो एग्जांपल, प्रोसीजर, लैक ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, अवेलेबिलिटी एंड लैक ऑफ सुपरविजन। ये है सुपरविजन, ये फोटो में दिखाई दे रहा आपको कैसा काम कर रहा हूँ, टोटली अनसेफ, नो पीपी, नथिंग, नो हैंगिंग सिस्टम, नो लाइफ लाइन्स, नो सुपरविजन, वो खुद गिर जाते हैं ऐसा। एनवायरमेंटल, लाइटनिंग, टेम्परेचर, वही बायोलॉजिकल, केमिकल, वेपर, स्मोक, एनवायरमेंट में बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया, रेप्टाइल्स जो कि एक्सकवेशन में, ये एनवायरमेंट। सी एनवायरमेंट कितना है, सराउंडिंग्स देखो काम कैसा, और फोटोज, ये एनवायरमेंट है। सी डिजाइन एंड इक्विपमेंट, वर्कप्लेस लेआउट, डिजाइन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। देखिए केबल्स पूरे ऐसे ही है, पूर केबल मैनेजमेंट बता दो, फोटो में बंदा देखो केबल पूरे पैर के नीचे, उससे आदमी गिर सकता है। तो इक्विपमेंट्स एंड डिजाइन और वर्कप्लेस लेआउट, ये भी मायने रखता है। डिजाइन एंड इक्विपमेंट यहाँ पे भी देखिए, इक्विपमेंट सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, गार्डिंग, एरोनॉमिक्स, जैसा कि मैं बताया एरोनॉमिक्स बोला था ना आपको, कंटिन्यूअसली एक बंदा एक काम कर रहा है मशीन पे, एक ही पोस्चर में, बॉडी का पोजीशन एक ही है, उसको ही कहते हैं एरोनॉमिकल हजार्ड, जिससे बॉडी में इफेक्ट हो, जॉइंट पेन हो, बैक प्रॉब्लम्स हो, और वो लोकेशन से कंटिन्यू, एक बंदा सॉफ्ट सर्विसेज में, मतलब सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली 8-9 घंटे काम करता है बैठ के एक ही पोस्चर में, उसके आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, उसको आई स्पेक्स लगते हैं बॉडी पे, बैक पे, तो दैट इज एरोनॉमिक्स। डिजाइन एंड इक्विपमेंट and the way you are exposing to that equipment. And accessibility, which जो के how you are accessing, and how you are the way enter and exit, and the way you operate, and the way you do the operations of that equipment. Human behavior, see, common to all accidents, no limit to a person involved in the accident, not limited to person involved in accidents. ह्यूमन बिहेवियर, हर एक एक्सीडेंट में ह्यूमन बिहेवियर ही मेन इंपॉर्टेंट है, देखा गया। ह्यूमन फैक्टर्स, ओमिशन एंड कमीशन, ये देखिए, डिविएशंस फ्रॉम एसओपी, सेफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स एसओपी में, लैकिंग अथॉरिटी, शॉर्टकट्स, रिमूविंग गार्ड्स, समझे, कमीशनिंग सही नहीं हुई, कमीशनिंग सही नहीं हुई, डिविएशंस माने एसओपी को फॉलो नहीं करना है, एसओपी माने सेफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, वही सेफ्टी प्रोसीजर्स जो रहते हैं, मेथड स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। लैकिंग अथॉरिटी की लैकिंग है, शॉर्टकट्स, रिमूव गार्ड्स। ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट नीड्स टू बी डन, कॉम्पिटेंसी, हाउ इट नीड टू बी डन, कॉम्पिटेंसी माने वही जिसके बाद एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है वो। फाइनली कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट हैपन इफ इट इज और इजंट डन, यही है नॉर्मल आपको दिखा। तो स्पीड लिमिट फॉलो करना है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ये consequences influence behavior individually, timing, immediate offering, constancy, certain. See, human behavior that have consequences that are soon certain, positive, have a strong effect on people's behavior. ये बहुत important है आपका attitude. Some examples of consequences, just examples है यहाँ पे consequences के, अपना नहीं सुना. Why is one sign often ignored, the other one often followed? Think the safe way is the best way. Stop. देखिए ये दो साइन है, ज्यादातर एक फॉलो होता है, एक इग्नोर होता है. स्टॉप में थिंक सेफ के बारे में थोड़ा सोचते, कभी हाँ चलो इग्नोर, स्टॉप साइन है, कभी रोकते कभी सीधा चले जाते. तो इसलिए दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सोचने बैठे, इसलिए फॉलो करना है. ह्यूमन बिहेवियर, a consequences that follow soon after a behavior has stronger influence than consequences that occur later. तो जो भी soon behavior, like consequences that follow soon after a behavior strongly, consequences that follow soon after a behavior, जो रिजल्ट है इंसिडेंट का, एक्सीडेंट्स का, अगर वो उससे पहले ही बंदा अगर उस पर स्ट्रॉन्ग वो करके इन्फ्लुएंस रख के उसको बाद में करने का बदल पहले ही कर लिया तो इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता. साइलेंस इज कंसिडर्ड टू बी द कंसेंट, साइलेंस रहना भी एक वजह है कंसेंट का.
बट फेल्यूर टू करेक्ट अनसेफ बिहेवियर, अगर अनसेफ बिहेवियर को अपन करेक्ट नहीं कर सकते, फेल हो जा रहे, तो वो इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय पे कंटिन्यू वही बिहेवियर करने के लिए। अगर अगर आप अनसेफ बिहेवियर लाइक करेक्ट अनसेफ बिहेवियर, आप अगर करेक्ट नहीं कर सक रहे अनसेफ बिहेवियर को, आप उसको एजुकेट नहीं कर सक रहे और आपका बिहेवियर वही वे में कंटिन्यू हो रहा, आप चेंज नहीं हो रहे टुवर्ड्स योर वर्क, देन indirectly or directly you are going to meet and you are going, it is going to lead into the any big or massive accidents or incidents. Human behavior, same human behavior continuity यहाँ पर देखिए, करेक्टिव एक्शन मस्ट बी प्रॉम्प्ट, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस। प्रॉम्प्ट रहना है सिर्फ सूटेबल, और जो जो वे में जो करेक्टिव एक्शन लेना देना है, और उस पर कोई चीज की जो है आपको वो नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, पार्शियलिटी नहीं करना है, वही बता रहा। सी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिवली डील करना है आप चीज को, और पॉजिटिव वे में ही काम करना है, सही और सेफ्टी को पॉजिटिवली लेके काम करना है। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट डोंट वर्क, कभी भी पेनल्टीज पनिशमेंट नहीं करते थे। डर रहता बंदा नहीं तो स्पीडी, स्पीडिंग टिकट एनोलॉजी, ये एक पॉइंट है। बट पेनल्टीज इसलिए फर्स्ट टाइम वर्बल वार्निंग दो, सेकेंड टाइम रिटर्न वार्निंग दो, थर्ड टाइम वेजेस पे कट करने के लिए। एग्जाम्पल्स, सोन सर्टेंसी इमीडिएट लेने का है, सर्टेन माने हैप्पी इन वेरी टाइम, पॉजिटिव निकोटिन हाई, एक जस्ट उसका है। द अदर कॉन्सिक्वेंस लेटर एंड सर्टेन नेगेटिविटी, यानी कि ईयर्स लेटर होने का। नॉट स्मोकर गेट लंग्स कैंसर, ये मेडिकल है। डिविएशन फ्रॉम एसओपीस, ये इंपॉर्टेंट। नो सेफ प्रोसीजर्स, एसओपी सेफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, एम्प्लॉय डिडंट नो सेफ प्रोसीजर, नहीं बात है। एम्प्लॉय न्यू डिड नॉट फॉलो सेफ, मालूम है फिर भी नहीं। प्रोसीजर एनकरेज रिस्क टेकिंग, जो एनकरेज करते रिस्क टेकिंग को। एम्प्लॉय चेंज अप्रूव्ड प्रोसीजर्स, अपने आप के बनाना, ये नहीं ऐसा ऐसा, ये। then again human being, see यहाँ पे, what would you do as a worker if you had to take 10 to 15 minutes to learn the correct PP, to enter in the area, to turn off a control valve which took 10 seconds? obviously 10 सेकंड के काम के लिए 10 से 15 मिनट को आपको लगते पहनने के लिए पीपी, तो क्या करते आप? मगर 10 सेकंड का ही काम है, 10 सेकंड का काम है भाई, क्या करना है, 10 सेकंड में हो जाता ना, खाली वाल्व बंद करके आना, बोल के चले जाते। वो 10 सेकंड में इंसिडेंट एक्सीडेंट इसीलिए यही बता रहा। तो वो 10 से 15 मिनट लगे तो लगे पीपी पहनने में, बट वो 10 सेकंड के लिए काम के लिए पहनना था। पनिशमेंट और थ्रेटनिंग वर्कर इज अ बिहेवियरल मेथड यूज्ड बाय सम सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम। सम ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट, पनिशमेंट या थ्रेटनिंग, डराना करना। पनिशमेंट ओनली वर्क इफ इट इज इमीडिएट, अगर इमीडिएट एक्शन ले रहे तो ही पनिशमेंट काम को आता। अकर्स एवरी टाइम देयर इज अनसेफ बिहेवियर, इज देयर इन अनसेफ बिहेवियर, देन दिस इज वेरी हार्ड टू डू। बहुत टफ है ये पनिशमेंट देना, ऑब्वियसली। सी एटीट्यूड, ये है ह्यूमन आर इनसाइड ए पर्सन हेड, देयर they know therefore they are not observable nor measurable, or like measurable। एटीट्यूड ये तो बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, उसको एटीट्यूड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग बिहेवियर। एटीट्यूड चेंज होता है अगर बिहेवियर चेंज करे तो। आपका एटीट्यूड वैसी, अब जैसा कि एक पढ़े लिखे का एक एक एजुकेटेड बंदे का अनएजुकेटेड बंदे का एटीट्यूड क्या रहता है। एजुकेटेड बंदे में अनएजुकेटेड बंदे में क्या है, मैनरिज्म, बिहेवियर जो रहता। एजुकेटेड बंदे को मालूम है कौन से सिचुएशन में कैसा बिहेव करना, रिएक्ट करना, एक्ट करना। बट अनएजुकेटेड बंदे को पता नहीं चलता किसको कैसा बात करना, किससे कैसा बिहेव करना, छोटों से कैसा बात करना, बड़े से कैसा बात करना। तो ये जो है, ये जो आपका एटीट्यूड है उसको आपका बिहेवियर जो एटीट्यूड जो मतलब जो एटीट्यूड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग बिहेवियर। आपका एटीट्यूड कब चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपका एटीट्यूड चेंज होना है तो आपका बिहेवियर चेंज, इफ नॉट आपका वही बिहेवियर है तो वैसे एटीट्यूड आपका मेंटेन। एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्रेस, सी you can see, you can't say scare worker into a safety focus with a pay attention campaigns। ये तो campaigns के बारे में। reason for lack of attention, technology encourages short attention spans, TV remote, computer mouse, increased job stress caused by uncertainty, मैंने mergers and downsings, lean staffing, increase fast pace, increase workloads require quick attention shift between tasks, fast pace of work,
little time to learn new tasks and do familiar ones safely. ये एक लैक ऑफ अटेंशन का रीजंस बता रहे हैं नाउअडेज आप टेक्नोलॉजीज को जो जैसा आप बंदे लोग फॉलो कर टेक्नोलॉजीज को जैसे अडेप्ट कर रहे कंटिन्यूअसली कोई चीज को कर रहे तो वो जो है वो है मतलब उसके बारे में है. देन ह्यूमन बिहेवियर सेम यार ह्यूमन ये सारे बहुत सारे डेवलपिंग पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स बिफोर स्टार्टिंग कंसिडर हाउ टू डू जॉब सेफली. आप बताना है अंडरस्टैंड रिक्वायर पीपी एंड हाउ टू यूज इट. पीपी जो है कैसा यूज करना कब यूज करना. डिटरमाइन करेक्ट टूल्स एंड इंश्योर दे आर इन गुड कंडीशन. बताना है टूल्स कौन से है ह्यूमन बिहेवियर मतलब पता चलना है कि कौन सा टूल्स है और कंडीशन कैसा है. स्कैन वर्क एरिया नो व्हाट्स इज गोइंग ऑन. क्या क्या काम चल रहा आपको स्कैन करना सर. as your work check work position reduce any strain. Any unsafe act or condition should be corrected. Remain aware of any changes in your workplace, people coming or going out. Talk to other workers about safety. Take safety home with you. सेफ प्रोसीजर्स फॉलो करना ये पर्सनल अवेयरनेस ट्रेनिंग में अपन देना है. सम थॉट क्वेश्चंस डू यू वांट टू नो डू यू वांट टू वर्क सेफली ये क्वेश्चन है. डू यू वांट अदर वर्क्स टू वर्क सेफली. डू यू वांट टू लर्न हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इंजरीज ये. हाउ डू ऑफन डू यू थिंक अबाउट सेफ्टी एज यू वर्क. कितने बार सोचते क्या कितना है. और हाउ ऑफन डू यू लुक फॉर एक्शंस दैट कुड कॉज और प्रिवेंट इंजरीज. एक्शंस कितने बार लेते कि क्या कितने बार हो सकता है कैसा होता है ये क्वेश्चन थॉट्स. See human behavior time all this safety stuff takes time doesn't it. ये पूरे I'm too busy I can't possibly do all this. The boss wants the job done now. बहुत important. अरे भाई इतना काम करना है फिर हेलमेट डालो ये इतने 5 मिनट के काम के लिए तुम इतने चीजें पहनो बोले यार. ये बिहेवियर है बंदे का साइड पे. अरे बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं. अब ये मैं हेलमेट डाल लूं सर जी ऊपर जाऊं फिर हेलमेट गिर जाएगी या नहीं तो हेलमेट रखने जगह नहीं है कितने एक्सक्यूजेस रहते हैं. ये मैं सब नहीं कर सकता ये बिहेवियर. और मेरा जल्दी काम करना है मेरे को मेरा बॉस बोला आज शाम तक करके देना क्योंकि बॉस को काम करके देंगे आप तो बॉस आपको इंक्रीमेंट देंगे ना. मगर वो 1 मिनट की जल्दी काम करने पे एक हाथ टूट गया कट गया तो क्या करे. इंक्रीमेंट लेके क्या करे हाथ तो चलेगा. तो ये चीज अपने को बताना है एज ए सेफ्टी पर्सन. ठीक ये एक जस्ट इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज है ये जस्ट नॉर्मल ऑडिटिंग में पता चलते रहे. आउटकम ऑफ एक्सीडेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या क्या आउटकम्स है. डायरेक्ट कॉस्ट जैसा मैं बताया मेडिकल इंश्योरेंस लॉस टाइम एंड फाइन्स ये डायरेक्ट कॉस्ट. कंप्लायंस किसको बोलते हैं if you are not following rules and regulation. Failure to develop and implement is program may be cited as a serious violation by itself or grouped with the other violation. Penalties as a high. ये penalties आप जो और rules and regulations है साइट के उसके और गवर्नमेंट के if you are not complying with that then you will be penalized heavily. उसको ये जो लॉ को फॉलो नहीं करते ये तो you have to comply. कंप्लायंस करना है आपको कंप्लाई करना है. अगर नहीं करे तो मुश्किल है. तो अप टू 30% ऑफ पेनल्टी कैन डिडक्टेड based upon the employer good faith is the business upon awareness of the law efforts to comply with the law. comply करना है before the inspections correction of hazards during the inspection cooperation and attitude during the inspection. ये थर्ड पार्टी जो होता है ऑडिट जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट वो ओवरऑल सेफ्टी एंड हेल्थ एफर्ट्स इंक्लूडिंग द एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स. हेल्थ एंड सेफ्टी के ओवरऑल सेफ्टी एफर्ट्स जो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में करने के लिए जस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है. इंज्यूर्ड लॉस्ट टाइम वेजेस नॉन इंज्यूर्ड लॉस्ट टाइम वेजेस नॉन लॉस्ट टाइम वेजेस इंज्यूर्ड लॉस्ट टाइम वेजेस ओवर टाइम सुपरवाइजर वेजेस लॉस्ट बोनसेस एम्प्लॉय मोरल नीड फॉर काउंसलिंग टर्नओवर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट. एम्प्लॉय का मोरल इज्जत नाम एंड काउंसलिंग के लिए टर्नओवर जितना है उस पर इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसमें और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है इक्विपमेंट रेंटल कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट लॉस्ट ऑर्डर्स ये पूरे इनडायरेक्ट है. जिसमें थर्ड पार्टी लॉ सूट्स है यहाँ पर देखिए न्यू हायर लर्निंग टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम कम्युनिटी के डिक्रीज प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन टीम टाइम उसमें लग जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट.
रियल कॉस्ट बंदा मर सकता है, देखो यहाँ फोटोज। आउटकम ऑफ एक्सीडेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का आउटकम पॉजिटिव है। प्रिवेंशन रिपीट ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंट रिपीट ऑफ एक्सीडेंट्स प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोग्राम्स, इम्प्रूव सेफ्टी प्रोग्राम्स करना है। इम्प्रूव प्रोसीजर्स, इम्प्रूव करना। इम्प्रूव इक्विपमेंट डिजाइन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या है? मस्ट बी रिटर्न tailored to particular hazards or for particular plant or operation. एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम बताना पर्टिकुलर हैजार्ड्स के बारे में, पर्टिकुलर प्लांट और ऑपरेशंस। मिनिमम एलिमेंट्स क्या है? सेफ्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेफ्टी एंड हेल्थ कमिटीज, ये जो मिनिमम एलिमेंट्स। मस्ट बी रिटर्न, रिटर्न में रहना। सी सेफ्टी ओरिएंटेशन क्या क्या है उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन टोटल सेफ्टी प्रोग्राम, सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में है, इंजुरीज के बारे में इसके अंदर, लोकेशंस, फर्स्ट एड फैसिलिटीज वर्क है, हाउ टू रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन जो मैं बताया आपको, यूज ऑफ केयर ऑफ पीपी, इमरजेंसी एक्शंस बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल्स के बारे में, ये सेफ्टी ओरिएंटेशन। डिजाइन सेफ्टी एंड हेल्थ कमिटी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सेफ्टी कमिटीज जो होते हैं। देखिए सेफ्टी मीटिंग इंस्टेड ऑफ सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी मीटिंग ज्यादा है। इफ लेस देन 11 एम्प्लॉयज टोटल, ये एग्जिस्ट एक रेशियो है, बट सेफ्टी मीटिंग सेफ्टी कमिटीज होना चाहिए। सेफ्टी मीटिंग यू मस्ट बी रिव्यू इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, सेफ्टी मीटिंग में क्या है? कितने इंस्पेक्शंस किए, कितने ऑब्जर्वेशंस लिए सो फार लास्ट मंथ। इवैल्यूएशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएट करे कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने नियर मिस हुए, तो ये है। फिर डॉक्यूमेंट अटेंडेंस एंड टॉपिक्स, इवैल्यूएट एएपी ना एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो है, और डिस्कस रिकमेंडेशंस, क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं उसके बारे में मीटिंग। सेफ्टी कमिटीज, ये सेफ्टी कमिटीज क्या है? proactive safety, they should meet as often as necessary. This will depend on a volume of production and contingencies, the number of employees, क्या है, size of workplace covered, nature of work undertaken on site, क्या क्या काम कर रहे, types of hazard and degree of risk, क्या hazard से क्या क्या हो। Meeting should not be cancelled, safety meeting कभी भी cancel नहीं करना। टाइम जो रहता है ईयरली स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे सेफ्टी कमिटीज होते हैं। इसके सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, सीईओ सब लोग के साथ होती है और ये रिव्यू करते हैं पूरा इसका, ये पूरे। द गोल ऑफ कमिटी इज टू फैसिलिटेट ए सेफ वर्क प्लेस। ऑब्जेक्टिव में बोला था ना, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट गाइड ए कमिटी टुवर्ड्स द गोल इंक्लूड मोटिवेट, एजुकेट, ट्रेन, ये पूरे सारे। इनकॉर्पोरेट सेफ्टी एस्पेक्ट, क्रिएट ए कल्चर वेयर ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी, ये एनकरेज एंड यूटिलाइज आइडियाज फ्रॉम ऑल रिसोर्स, सबको आइडियाज को रिसोर्स। 4 पॉइंट्स रिमेंबर करना है। कम्युनिकेशन, डेडिकेशन, पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन, ये है। मस्ट बी लूप सिस्टम, कम्युनिकेशन लूप सिस्टम माने कनेक्टिविटी, टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट तक पूरी कनेक्टिविटी रहना, चेंज सिस्टम जो बोलते हैं। डेडिकेशन फ्रॉम एवरीवन, सबका डेडिकेशन चाहिए। पार्टनरशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, पार्टनरशिप जो रहती रहना है। और पार्टिसिपेशन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीम वर्क। हाउ इफेक्टिव कैन बी कमिटी। सेफ्टी कमिटी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, ए रिटन एंड published statement is an effective means of providing guidance and demonstrating commitment. ये है सेफ्टी रूल्स पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि मैं बताया था। टॉप मैनेजमेंट साइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, कंपनी स्टैंडर्ड, आवर पॉलिसी, वी आर फॉलोइंग सो एंड सो स्टैंडर्ड as per OSHA or NIBOS standard, and these are the company safety rules and policy. If you violated, you will be penalized, you will be terminated from the site. ये पूरे कंपनी के सेफ्टी कमिटमेंट जो टॉप मैनेजमेंट करता है उसको कहते हैं सेफ्टी पॉलिसीज। समझ में आया? सेफ्टी कमिटी फोकस लॉन्ग टर्म फोकस है, शॉर्ट टर्म फोकस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टू अचीव है, टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम जो है ईयरली टाइम फ्रेम में, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? असाइन बिटवीन मीटिंग्स में असाइनमेंट्स, वर्क टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म प्लान, टू अचीव लॉन्ग टर्म प्लान, ये है सारी चीजें। तो रमेश महीन समझ में आया? पूरा ब्रीफली बताया मैं। हाँ सर, ओके सर, लेकिन थोड़ा मैं जर्नी में था सर, इसलिए थोड़ा वाइस जब कट हो गया था सर सिग्नल, तो एक बार पीपीटी एक बार भेज दो ना सर, मैं जो काम पे सीधा नहीं सुना एक बार पढ़ लेता हूँ। ओके महीन सुने हैं, समझ में आया? ओके रमेश, आई लॉग ऑफ देन। ओके, ये था। हाँ सर, बाय सर, थैंक यू सर। Tomorrow I'll update you. If possible, I may take or I might not take it. It is I have some work, personal work. If possible, I'll try to take. If not, day after tomorrow or Sunday we'll plan it. Okay, accordingly. Definitely sir.
Thank you, Ramesh. sir. Okay. Bye sir. Good night. Thank you.